हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री एकेडमी। जेई मेन सेलेक्टिव प्रॉब्लम सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम फिर कुछ नए क्वेश्चंस लेके आए हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जल्दी से सब्सक्राइब करिए, और यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करिए। तो आइए शुरू करते हैं। ये पहला क्वेश्चन है। लेट मी रीड द क्वेश्चन फर्स्ट, देन विल डिस्कस इट। Solute A dimerizes in water when 0.7 gram of solute A is dissolved in 42 gram of water. It depresses the freezing point by 0.2 degrees Celsius. The percentage association of solute A in water is, the molar mass of A is 93 gram per mole. Molar depression constant of water is 1.86 Kelvin kg per mole. We are discussing here association, right? Solute A associate in water, and basically this association is dimerization. I think solute A dimerizes in water, so we can write here 2 times of A will form A2, and this is happening in water. अगर मैं इसको डिग्री ऑफ एसोसिएशन के टर्म्स में लिखना चाहूँ, आई कैन राइट हियर this is 1 minus beta and this is beta by 2, right? So I am writing in terms of degree of association. So beta is here degree of association. So delta TF की वैल्यू दे रखी है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा TF इज गिवन। डेल्टा TF की वैल्यू जो है वो 0.2 डिग्री सेल्सियस है, and we can calculate what is the molality of the solute in the solution. So molality of the solute is mass of the solute. Mass of the solute is 0.7 gram divided by molar mass of the solute, which is 93. So here if I am taking molar mass of A, means we are discussing about theoretical molality of the solution. So M theoretical is mass upon molar mass, that is number of moles of solute, and it is present in 42 gram of water. So if we convert into kg, a factor of 1000 will come in numerator. ये मोलालिटी की वैल्यू हो गई, डेल्टा TF की वैल्यू गिवन है, KF की वैल्यू गिवन है. नाउ आई कैन राइट दैट डेल्टा TF is equal to Ventov factor I into KF into theoretical molality. तो यहाँ पे अगर हम वैल्यू पुट करते हैं, डेल्टा TF की वैल्यू जो है वो 0.2 है. Ventov factor we want to calculate here. KF is 1.86 and molality theoretical we can write this is mass of solute upon molar mass of solute, that is 93 into 1000 divided by mass of solvent in gram, which is equal to 42. तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें, अगर मैं ये 1000 को यहाँ मल्टीप्लाई करता हूँ इन टर्म्स में, तो ये डेसिमल प्लेस इन दोनों जगह से हट जाएंगे. सो आई कैन राइट हियर दैट 0.2 is equal to Ventov factor I into 186 into 7 divided by 93 into 42, राइट? इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये 2 टाइम्स जाएगा, दिस विल गो 6 टाइम्स. इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं. सो द Ventov factor I is equal to 0.6. So once you get the Ventov factor I, you can write that the Ventov factor I is equal to actual number of solute particles. So from here, number of particles of this plus number of particles of this. So on simplification we can write here this is 1 minus beta by 2 upon 1. इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि बीटा बाई 2 की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 0.4, एंड फ्रॉम हियर वी कैन कैलकुलेट दैट द वैल्यू ऑफ बीटा इज इक्वल टू 0.8. सो दिस इज डिग्री ऑफ एसोसिएशन. अगर हमसे ये कहा जाए कि व्हाट इज द परसेंट एसोसिएशन, so percent association, or in this case percent dimerization is equal to 80%. so if we multiply beta by 100 we are getting 80%. तो इस हिसाब से जो है वो 4 आंसर होना चाहिए. कई बच्चे जो हैं वो इस तरह से ना लिख के Ventov factor I की जो वैल्यू है उसको यहाँ पे लिख सकते हैं, I is equal to 1 plus
1/n-1 इंटू बीटा, और डायमराइजेशन हो रहा है तो यहाँ बीटा की जो वैल्यू है, दैट बीटा की वैल्यू जो होगी वो n की वैल्यू 2 है, सो दैट यू कैन पुट हियर, यू कैन कैलकुलेट बीटा इज इक्वल टू i-1/1/n-1, और यहाँ से लिख सकते हैं दिस इज i-1/1/n इज 1/2-1, राइट। तो यहाँ n की वैल्यू 2 डायमराइजेशन के लिए, n की वैल्यू 3 ट्राइमराइजेशन के लिए, एंड सो ऑन. So this is about this degree of association. डिग्री ऑफ एसोसिएशन में आपको थोड़ा सा एक चीज और ध्यान रखनी है. मैं जनरल फॉर्मूला यहाँ एसोसिएशन का लिख रहा हूँ कि n पार्टिकल्स A के जो है वो एसोसिएट होके 1 पार्टिकल फॉर्म कर रहे हैं, और फॉर दिस जनरल फॉर्मूला वी हैव डिराइव्ड दैट वेंटो फैक्टर I इज इक्वल टू 1 + 1/n-1 इंटू बीटा. ठीक है, ये हम डिराइव कर सकते हैं इस जनरल एसोसिएशन के फॉर्मूले के लिए. अब इसमें आपको ध्यान क्या देना है कि बीटा इज डिग्री ऑफ एसोसिएशन, राइट. सो इफ फ्रॉम हियर इफ आई एम सेइंग दैट व्हाट इज द परसेंटेज एसोसिएशन और परसेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स व्हिच आर एसोसिएटेड, so percent molecules which are associated is equal to the molecules which are associated. From here we can write 1 minus beta, and this is beta by n. So beta particles got associated upon initial number of particles in 200. So from here we are getting that what are the percentage molecule associated. Now if they are asking that what is the percent of the molecules which are existing in this monomeric form, percentage of molecules which are existing in monomeric form, then you have to be very careful. Then you have to write 1 minus beta upon total अभी कितने exist कर रहे हैं. You can write this is 1 minus beta plus beta by n, right. For dimerization n will be 2, for trimerization n will be 3, and so on in 200. तो ये है percentage of the molecules which are existing in monomeric form. Similarly we can find out that what is the percentage of molecules which are existing in polymeric form. polymeric form में molecules कितने exist कर रहे हैं उनका अगर हमें percentage निकालना है तो then we can write that is equal to beta by n, क्योंकि ये है polymeric form और total जो मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स हैं दैट इज 1 माइनस बीटा प्लस बीटा बाई एन इन 200. सो यू हैव टू वेरी केयरफुल. ये हमें पता है, हम इसको यूज करते हैं बार बार. दिस इज द परसेंटेज ऑफ मॉलिक्यूल्स एसोसिएटेड. ठीक है, कि कितने परसेंट जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एसोसिएट हो गए, तो दैट इज इक्वल टू मॉलिक्यूल्स एसोसिएटेड अपॉन इनिशियल इनटू 100. But if they are asking what is the percentage of molecules which are existing in monomeric form, तो ये formula होगा percentage of molecules which will exist in polymeric form, then this is the formula. ये एक common mistake है जो बच्चे करते हैं गलती, क्योंकि ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इस पार्ट से पूछे जाते हैं, बहुत कम क्वेश्चन इस पार्ट से पूछे जाते हैं. लेकिन जेईई एडवांस में पास्ट ईयर्स में इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं, सो यू कैन नॉट डिनाई. सो बी केयरफुल अबाउट द लैंग्वेज, व्हाट इज द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन. आपको थोड़ा सा इस पे केयरफुल होना होगा. कई बार जब क्वेश्चन को पूछा जाता है, जब हम दो सॉल्यूशंस को मिक्सअप करते हैं एंड देन वी हैव टू कैलकुलेट what is the Van't-Hoff factor before and after. जैसे यहाँ कुछ important example है. अगर हमारे पास Ki का solution है and we are going to add HgI2. HgI2 is sparingly soluble in water, तो ये insoluble है, soluble नहीं है. HgI2 को अगर हम Ki के solution में add करेंगे तो it will form this complex K2HgI4. So before addition the Van't-Hoff factor I for this is equal to 2. इसका जो Van't-Hoff factor है वो 2 होगा, because if nothing is mentioned about salts are example of strong electrolyte, they are 100% dissociated. तो अगर मैं इस बैलेंस रिएक्शन के हिसाब से चलूं तो रिएक्शन से पहले 4 पार्टिकल्स हैं सॉल्यूट के. आफ्टर द रिएक्शन इज कंप्लीटेड देयर इज 3 पार्टिकल्स ऑफ द सॉल्यूट. तो सॉल्यूट पार्टिकल्स जो हैं वो यहाँ पे कम हो रहे हैं.
and we know that colligative properties depends on the number of solute particles, it does not depends on the nature means उस पे चार्ज क्या है, उसका साइज क्या है, उसका मास क्या है, उससे मतलब नहीं है कितने सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं। तो यहाँ पे अगर Ki का सॉल्यूशन है एंड वी आर गोइंग टू ऐड HgI2 इनटू Ki सॉल्यूशन, देन डेफिनेटली सॉल्यूट पार्टिकल्स विल डिक्रीज, मींस the colligative properties of this solution is going to decrease. So depression in freezing point की जगह यहाँ पे जो होगा वो freezing point बढ़ेगा, elevation in boiling point की जगह boiling point is going to decrease when we are going to add HgI2 in Ki solution। ठीक है, इसी तरह से CuCN को अगर हम KCN के सॉल्यूशन में ऐड करते हैं तो बिफोर एडिशन ऑफ CuCN द नंबर ऑफ पार्टिकल्स विल बी 6। ठीक है, 6 पार्टिकल्स हैं बिकॉज वी आर अज्यूमिंग दिस इज 100% डिसोसिएटेड, वेंट ऑफ फैक्टर ऑफ दिस इज 2, 3 मोल्स हैं, 3 into 2 विल बी 6 पार्टिकल्स हैं। जब ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी देन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स हियर यू कैन सी दैट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज 4। सो ये भी बहुत फेमस रिएक्शन है, CuCN एडेड टू KCN सॉल्यूशन विल फॉर्म K3CuCN4। इसी तरह से हमारे पास कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है और इस कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन को हमने अगर अमोनिया सॉल्यूशन में ऐड किया तो यहाँ पे एक पार्टिकल है, इट इज सॉल्युबल, दीज आर इनसॉल्युबल, दिस इज सॉल्युबल। यहाँ पे 4 पार्टिकल्स हैं, व्हेन दिस रिएक्शन इज गोइंग टू कंप्लीट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स हियर विल बी 2। तो यहाँ भी जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं वो कम हो रहे हैं। तो बहुत कम केसेस हैं जहां पे हम दो सॉल्यूशंस को मिक्स करते हैं और मिक्स करने के बाद जो नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स हैं दे आर गोइंग टू डिक्रीज। सो बी केयरफुल अबाउट दैट। यहाँ पे जो एक्सपेक्टेड है उससे रिजल्ट जो है वो डिफरेंट आएगा। सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। लेट अस मूव टू द प्रॉब्लम। Two solutions A and B are prepared by dissolving 1 gram of non-volatile solute X and Y respectively in 1 kg of water. The ratio of depression in freezing point of A and B is found to be 1:4. The ratio of molar mass of X and Y is। तो इसमें जो इंफॉर्मेशन दे रखी है पहले हम उसको लिख लेते हैं, राइट। तो ए और बी हमारे पास दो सॉल्यूशन है, वी हैव 2 सॉल्यूशंस ए एंड बी, एंड सॉल्यूट का अमाउंट सेम है दोनों सॉल्यूशन में। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ए हियर इज mass of the solute upon molar mass of the solute. Number of moles of B is equal to mass of the solute in gram divided by molar mass of the solute. They are present in 1 kg of water. Solvent is same, so molality of A is equal to number of moles of A, that is 1 upon molar mass of A, and molality of B solution is equal to 1 upon molar mass of B. Since the solvent is same, that is water, 1 kg of water में इसको dissolve किया है। Now we can write that depression in freezing point of A solution divided by depression in freezing point of B solution is equal to Kf into molality of A, Kf into molality of B. Kf will cancel out. Molality of A is 1 upon molar mass of A, and molality of B is 1 upon molar mass of B. So they have given that the ratio of depression in freezing point of these solutions, right, that is equal to 1:4, and they are asking that the ratio of molar mass of X is to Y. So X is to Y का जो molar mass का ratio है that they are asking, right? So here we have written solution A के लिए X है और solution B के लिए Y है, right? So here molar mass of B means molar mass of Y upon molar mass of X, that is equal to 1:4. They are asking that what is the value of molar mass of X upon molar mass of Y. So molar mass of X upon molar mass of Y is 4:1 here. Molar mass of X upon molar mass of Y की जो वैल्यू है वो 4:1 आ रही है। तो कई बच्चे जो हैं वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे, यहाँ 1:4 दे रखा है, हमारा आंसर 4:1 आ रहा है। सो इफ यू ट्राई टू राइट दैट व्हाट इज दिस रेशियो, यू कैन सी हियर दिस इज 1 एंड दिस इज 1/4, तो 4:1 बी ऑप्शन होगा। तो कई बच्चे यहाँ डायरेक्ट नहीं दे रखा, मैथमेटिकली लोचा है यहाँ पे, है ना, कंफ्यूज करने के लिए इस तरह से दे रखा है। सो
second will be the answer. So when we are discussing these type of things, depression and freezing point, आपको ये ध्यान रखना है कि फ्रीजिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट जो है वो सेम होता है, इट इज द सेम कंडीशन. अगर हम हीट एनर्जी सिस्टम से रिमूव करेंगे तो सिस्टम फ्रीज आउट होगा, अगर हम सिस्टम को हीट एनर्जी देंगे तो सिस्टम मेल्ट आउट होगा, राइट. So freezing point and melting point is same, and you have to be very careful about freezing point and melting point. एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जिस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको पता है कि हम जैसे जहाँ भी बर्फ पड़ती है तो बर्फ को रोड से हटाने के लिए सॉल्ट ऐड करते हैं. सॉल्ट को ऐड करने पे जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, बिकॉज डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू मोलालिटी, आप सॉल्यूट ऐड कर रहे हो, मोलालिटी बढ़ा रहे हो, सो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज गोइंग टू इंक्रीज, मीन्स the freezing point of the solution is going to decrease. Freezing point of the solution is decreasing means melting point of the solution is decreasing, means the solution will melt at low temperature. So ये फंडा हम कुल्फी बनाने में भी यूज करते हैं. तो क्या करते हैं, देखो ये मटका रखा हुआ है, इस मटके के नीचे या चारों तरफ जो है वो आइस होती है, और हम जो क्रीम जिसको हम आइसक्रीम बनाना चाहते हैं वो क्रीम जो है वो मटके के अंदर होती है. तो मटके के सराउंडिंग में जो आइस होती है उस आइस पे हम नमक छिड़कते हैं, एंड नमक छिड़कने से क्या होता है कि जो आइस है उसका हमने मेल्टिंग टेम्परेचर कम कर दिया, मतलब आइस अब जो है जल्दी मेल्ट होगी, फास्ट मेल्ट होगी. आइस जब मेल्ट होगी तो अपने सराउंडिंग से हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगी. तो ये जो आइस है इस मटके के चारों तरफ, उसके सराउंडिंग मीन्स मटके के अंदर जो जो क्रीम रखी हुई है उससे भी वो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगी, एंड बिकॉज ऑफ दैट जो क्रीम अंदर है दैट इज गोइंग टू फ्रीज आउट, और इस तरह से हम आइसक्रीम बनाते हैं. सो दैट्स अ वेरी यूजफुल कॉन्सेप्ट जो आपको समझना चाहिए कि मेल्टिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट आर द सेम थिंग. इफ यू आर डिक्रीजिंग द मेल्टिंग पॉइंट यू आर ऑल्सो डिक्रीजिंग द फ्रीजिंग पॉइंट. मूविंग टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम, ऑस्मोटिक प्रेशर पे ये क्वेश्चन बेस्ड है. द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड इज 7.47 बार एट 300 Kelvin. To inject glucose to a patient intravenously, it has to be isotonic with blood. The concentration of glucose solution in gram per liter is, molar mass of glucose is given and the value of R is given, right? तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला लगाते हैं, पाई इज इक्वल टू CRT. ग्लूकोज के लिए आपको पता है वेंटॉ फैक्टर 1 की वैल्यू, वेंटॉ फैक्टर की वैल्यू 1 होगी, क्योंकि ग्लूकोज को वाटर में ऐड करेंगे इट विल नॉट एसोसिएट, इट विल नॉट डिसोसिएट, सो वेंटॉ फैक्टर विल बी 1. यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो बार में दे रखा है, बी केयरफुल अबाउट दैट. अगर ऑस्मोटिक प्रेशर एट ATM में है तो आर की वैल्यू कुछ अलग होगी, 0.0821 होगी. अगर आर की वैल्यू जो प्रेशर है वो बार में दे रखा है तो आर की वैल्यू जो है वो 0.08314 होगी, राइट. सो बी केयरफुल अबाउट दैट. तो पाई इज इक्वल टू CRT. सी मोलारिटी में यहाँ पे मोलारिटी हम लिख सकते हैं मास ऑफ द सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट, राइट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट. तो ये मास अपॉन मोलर मास इज नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर विल बी मोलारिटी. मोलारिटी इनटू आर की वैल्यू है 0.083 इनटू टेम्परेचर 300 Kelvin है. सो नाउ इफ वी ट्राई टू सिंप्लीफाई, यहाँ मास अपॉन वॉल्यूम ये हमें फाइंड आउट करना, कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज, वी डोंट हैव टू फाइंड मोलारिटी, we have to find the concentration in gram per liter. तो अगर हम यहाँ पे ग्राम पर लीटर में मीन्स मास ऑफ द सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, दैट इज इक्वल टू 7.47 इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इज 180 डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ आर विच इज 0.083 इनटू 300. इसको हमें सिंप्लीफाई करना है. सो वी कैन सिंप्लीफाई दिस. इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पे ये 3 डेसिमल तक है, राइट, पॉइंट के बाद 3 है, तो इसको 1000 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, देन वी कैन राइट दैट दिस इज 747 इनटू 18
00 डिवाइडेड बाई 83 इंटू 300। ये बड़ा सिंपल है, सिंप्लीफाई कर सकते हैं यहाँ पे। दिस इज 6 टाइम्स और इसको अगर आप देखो तो ये 9 टाइम्स है। सो 9 इंटू 6 विल बी 54। So the concentration of this glucose solution in gram per liter is equal to 54। मतलब 1 लीटर में 54 ग्राम ग्लूकोज का जो है हमें डिसॉल्व करना पड़ेगा in order to get this osmotic pressure। This one is assertion reason type of question। Let me read the question first। Assertion A is at 10 degrees Celsius the density of 5 molar solution of potassium chloride where the atomic mass of potassium and chlorine is 39 and 35.5 gram per mole। So the density of 5 molar solution of KCl is 1.3725 gram per ml। The solution is cooled to -21 degrees Celsius। The molality of solution will remain unchanged। ये पहला assertion है। रीजन क्या है? The molality of solution does not change with temperature as mass remains unaffected with temperature। In the light of the above statement choose the correct answer from the options। तो हमें पता करना है कि assertion जो है वो सही है या गलत है, राइट। सो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है। वी आर अज्यूमिंग 1 लीटर सॉल्यूशन। ये हमने मान लिया कि सॉल्यूशन हमारा 1 लीटर है and the density of the solution is given। from there we can find out what is the mass of solution। so 1000 into density, so this is 137.2.5 ग्राम। this is the mass of the solution। ये सॉल्यूशन का मास होगा। सॉल्यूट का मास हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, वी हैव टेकन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, मोलैरिटी इज गिवन, सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज 5। जो सॉल्यूट का मोलर मास है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट वी नो, सो दैट इज 39 plus 35.5 which is 74.5। so from here we can calculate what is the mass of solute। so number of moles of solute into molar mass of solute, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो आई थिंक कि ये वैल्यू आ रही है 372.5। सो फ्रॉम हियर अगर हम सॉल्यूशन के मास में से सॉल्यूट का मास सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो मास ऑफ सॉल्वेंट आएगा विच इज इक्वल टू 1 kg। नाउ we can calculate what is the molality। molality is number of moles of solute upon mass of solvent in kg। so molality of this solution is 5। now we can apply the formula delta TF is equal to KF into molality। KF की वैल्यू दे रखी है, नहीं दे रखी है तो we know that what is the value of KF for water, it is 1.86, molality is 5, right। Vent off factor will be 2 for potassium chloride if nothing is mentioned about salt। salts are example of strong electrolyte, they are 100% dissociated। so delta TF की वैल्यू जो है वो 18.6 आ रही है। मतलब इस सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ दिस सॉल्यूशन इज इक्वल टू -18.6 डिग्री सेल्सियस। अभी सॉल्यूशन को हम उसके फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे लेके गए हैं। when we bring the solution below its freezing point some solvent is freeze out। तो इन्होंने लिखा है molality is not going to change, molality will remain same। this is a false statement। ये statement false है क्योंकि यहाँ पे solvent is going to freeze out and because of that molality is going to change, right। हाँ, जब हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं तो हम मोलालिटी को यूज करते हैं because delta TF is equal to KF into molality और delta TB is equal to KB into molality because molality जो है अगर हमारा सिस्टम चेंज नहीं हो रहा, if the system is not going to change means if the solvent is not going to freeze out or something, molality is independent of temperature। तो ये जो सेकेंड स्टेटमेंट है, ये सेकेंड स्टेटमेंट ट्रू है। सेकेंड स्टेटमेंट ट्रू है because molality is independent of temperature but the first statement is wrong। so from here if we try to find out, इसका जो आंसर होना चाहिए वो 4 होना चाहिए, 4 should be the answer, right। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में हम ये यूज करते हैं डेल्टा TB is equal to KB into molality, डेल्टा TF is equal to KF into molality and relative lowering of vapor pressure is mole fraction of solute and osmotic pressure is equal to pi is equal to CRT, right।
तो दीज आर द फॉर्मूला विच वी आर गोइंग टू यूज। इसमें से आप 3 में देखो तो या तो हम मोलालिटी यूज कर रहे हैं या मोल फ्रैक्शन यूज कर रहे हैं, राइट, प्रोवाइडेड कि हमारा सिस्टम चेंज ना हो जाए, कोई फ्रीज आउट ना हो जाए, राइट। सो दैट इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि ये जो 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं इसमें से कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है जिसको हम बहुत एक्यूरेसी से मेजर कर सकते हैं, बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए भी मेजर कर सकते हैं, दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। सो ऑस्मोटिक प्रेशर इज द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी विच कैन बी मेजर्ड विथ मोर एक्यूरेसी फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस आल्सो, राइट। सो दीज आर सम पॉइंट्स रिगार्डिंग लिक्विड सॉल्यूशन, राइट। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल होंगे। थैंक यू वेरी मच। अगर अभी भी आप हमारे वीडियो पे बने हुए हैं तो लाइक करते हुए जाइएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नई प्रॉब्लम्स के साथ। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।